ایک ماہ بعد دلدل میں خود کو پھنسایا ہے، خود اپنی ذات کا تماشا بنایا ہے۔ پروانے کی بات کیا کرتے ہو، بشر ہو کے خود کو جلایا ہے۔ ان روح پہ لگے زخموں کا کوئی مرہم ہاتھ نہ آیا ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھ پہ لیٹی کسی غیر مرئی نکتے پہ غور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اذیت رقم تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو آمنہ، اگر تم پکڑی گئی تو یہ لوگ تمہارا حشر کر دیں گے۔ مجھے اب پرواہ نہیں زینب، کیونکہ جس چیز کی حفاظت ایک عورت کو کرنی ہوتی ہے اب وہ میرے پاس رہی نہیں۔ آمنہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں پتہ ہے احمد مجھے ہمیشہ کہا کرتا تھا ہر ہاتھ ملانے والا دوست اور ساتھ چلنے والا ہم سفر نہیں ہوتا، لیکن میں اس کی باتوں کا مذاق اڑاتی تھی، اس کی محبت فکر کو پابندی سمجھتی تھی، پر کاش میں اس کی بات مان لیتی، انوشے پہ یقین نہ کرتی۔ میں کیسے ایک انجان پر یقین کر سکتی تھی، پھر چاہے وہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو؟ صرف 2-3 بار کی ملاقات میں کیسے یقین کر لیا، جبکہ جس شخص کے ساتھ بچپن سے جوانی تک کا سفر کیا اس کی ایک بات نہ مانی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں تو کب کی خودکشی کر لیتی۔ آمنہ نے درد بھری آنکھوں سے زینب کی طرف دیکھا۔ جس دن تم یہاں آئی تھی اس دن میں نے بہت کوشش کی تھی، کئی اشارے کیے تھے کہ تم بھاگ جاؤ، پر تم نہیں سمجھی، اور تبھی انوشے کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ غصے میں آ کر کئی کوڑے مجھ پہ برسائے، پر مجھے ان کوڑوں سے تکلیف نہیں تھی، میرا دل تمہارے لیے دکھا تھا، پر میں بے بس تھی، کچھ نہ کر سکی تمہارے لیے۔ زینب نے اداسی سے آمنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں جانتی ہوں ایک تم تھی جس سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن تم نے اس ایک ماہ میں ہر طرح سے مدد کی، اور ایک انوشے تھی جس پہ بھروسہ کیا، دوست مانا، لیکن اس نے کیا کیا، میری روح کو زخمی کر دیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں جیسے ہو گیا، دل بھی کچھ ایسے ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم میری بات مانو، تم مت جاؤ آمنہ، یہ دنیا تمہیں نہیں اپنائے گی، یہ لوگ تمہارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، تمہیں مجبور کر دیں گے خودکشی کرنے پر۔ زینب نے اسے سمجھانا چاہا، جب اس معاشرے کے مرد یہاں آتے ہیں تو ان کو دنیا نہیں دکارتی، تو ان کے لیے تو زمین تنگ نہیں کرتی، کیوں وہ مرد ہیں اور ہم عورت، کیا روز محشر ان کا حساب نہیں ہوگا؟ وہ تو اپنی مرضی سے یہاں آتے ہیں، جبکہ ہم زبردستی یہاں قید کیے جاتے ہیں، اس میں بھی ہمارا قصور ہے۔ زینب کی بات آمنہ بھڑک کو کر بولی، تمہاری بات صحیح ہے آمنہ، پر تمہیں پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے اپنے ہمیں نہیں اپناتے، دنیا والے قبول نہ کرے تو تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنوں کے دتکارنے پر ہوتی ہے۔ کیا اب احمد تمہیں اپنائے گا؟ زینب کے سوال پر آمنہ خاموش رہی تو زینب پھر بولی، وہ کبھی نہیں اپنائے گا، مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ ایک زانیہ عورت کو اپنا نام دے سکے، ہاں لیکن اگر ترس کھا کر تمہیں رکھ بھی لیا اپنے ساتھ تو ساری زندگی تم پر طنز کے تیر چلاتا رہے گا، اور آمنہ اور تم وہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ان کا سامنا کرنے کی۔ زینب کی بات درست تھی، اس لیے فوراً آمنہ بولی، تو کیا تم در پڑتی رہو گی؟ زینب نے غصے سے پوچھا۔ زینب پلیز، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ایک ماہ میں نے جس اذیت میں گزارا ہے تم اچھے سے جانتی ہو، میں نے نور جہاں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو نور جہاں چاہتی تھی، تاکہ ان کو مجھ پہ یقین آ جائے۔ میں اب یہاں سے بھاگوں گی نہیں، نور جہاں کا اعتماد حاصل کر کے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنا چاہتی تھی، اور اب آخرکار مجھے وہ راستہ مل بھی گیا، لیکن تم ہو کہ مجھے یہاں روکنے کے در پر ہو۔ آمنہ نے خفی سے کہا، میں روک نہیں رہی، بس تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو بتاؤ تم یہاں سے نکلو گی کیسے؟ زینب نے تشویش سے پوچھا۔ میں نور جہاں کے کمرے میں خفیہ دروازہ دیکھ چکی ہوں جو سیدھے پیچھے راستے کی طرف کھلتا ہے۔ آج رات بیماری کا بہانہ بنا کر میں کمرے میں ہی رہوں گی، جب تک سب لڑکیاں رات گزارنے کے لیے مہمان خانے میں جا چکی ہوں گی، تب میں نور جہاں کے کمرے میں جا کر کسی بھی طرح دروازہ پار کرنے کی کوشش کروں گی۔ تمہیں وہ دروازہ کیسے ملا؟ زینب نے اچھبتے سے پوچھا۔ ایک دن میں نور جہاں کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، تبھی مجھے ایک دیوار پہ کچھ الگ سی لگی، کھوکھلی سی دیوار، میں نے اسے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا، تبھی مجھے اس خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ آمنہ نے تفصیل سے بتایا، میں ایک بار پھر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتی ہوں، پہلے تو میں غلط راستے پر تھی، اب میں اس دلدل سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ آمنہ نے ایک عزم سے کہا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی کی دعا کرتی رہی۔ آمنہ کمرے سے باہر نکلی تو بیٹھک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، رات میں تقریباً آدھی سے زیادہ لڑکیاں مہمان خانوں میں جا چکی تھی۔ آمنہ اپنی طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر کمرے میں ہی ٹھہر ہو گئی تھی، نور جہاں کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، اس لیے نور جہاں نے بھی آرام کرنے دیا۔ وہ آگے بڑھتی نور جہاں کے دروازے کے سامنے آ کر دروازہ بجانے لگی۔ آج انوشا نے رات بھر گزارنی تھی، اس لیے آج موقع صحیح تھا یہاں سے بھاگ جانے کا، ورنہ انوشا کی ہر وقت کی نظر میں کچھ نہ کر پاتی تھی۔ آمنہ نور جہاں کتنی خاص ہو گئی تھی، ایک مہینے میں انوشا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، آمنہ کی کسی بھی غلطی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ہر وقت نظر رکھتی تھی، لیکن آمنہ نے بھی یہ موقع ہاتھ ہی لگنے نہیں دیا۔ آمنہ کھڑی دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نور جہاں ہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہے لڑکی؟ تیری تو طبیعت خراب تھی نا، آرام کر جا کے
जी नूर बेगम, लेकिन हमें आपसे ज़रूरी बात करनी थी इसलिए आना पड़ा। आमना नूर को देखकर गड़बड़ा गई थी, एकदम संभल कर गोया हुई। ऐसी क्या बात है जो रात के इस वक्त करने आई हो? वह हैरान हुई। बहुत ज़रूरी बात है नूर बेगम, कोई आपको धोखा देने जा रहा है, उसके बारे में बताने आई हूँ, आमना ने राजदारी से कहा। क्या? कौन है? किसमें इतनी हिम्मत है कि गुस्ताखी करने के बारे में सोचने की गलती करे? वो कौन है गुस्ताख? हम वो अशक करेंगे कि रूह तक काँप जाएगी। वो गर्राई। अंदर चलें, यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकती, अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ ठीक है, आओ। आमना को पीछे आने का कहकर अंदर कमरे में चली गई। आना भी इनके पीछे चल दी। वो कमरे में आई तो आमना ने कमरा लॉक कर दिया और नूरजहाँ की तरफ देखा, जो अपने बेड की चादर ठीक करने में लगी थी। आमना इनके पीछे आकर खड़ी हो गई। हाँ लड़की, अब बता कौन है? जहाँ सवाल करती इसकी तरफ मुड़ी, आमना ने रुमाल इनके मुंह पर रख दिया। नूरजहाँ इस सब के तैयार नहीं थी, मजम्मत करती हाथ पैर चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दवा के असर से फौरन ही बेहोश हो गई। आमना नूर को छोड़कर आगे बढ़ी और दीवार के साथ लगी टेबल को हटाने की कोशिश करने लगी। टेबल खासी भारी थी, अकेले आमना की बस की बात नहीं थी। तभी दो हाथों ने इसकी मुश्किल आसान की। आमना ने चेहरा उठाकर देखा तो ज़ैनब थी, जो इसे देखकर मुस्कुराने लगी। तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो लॉक लगा दिया था। आमना ने हैरान होते हुए पूछा। ऐसा कोई लॉक नहीं जो मैं ना खोल सकूँ, ज़ैनब ने फ़ख्र से कहते दूसरी चाबी आमना के सामने की। मेरे पास कमरे की दूसरी चाबी है, जिसको मैंने आज ही चुराया है। तुम तो चली गई, जाओगी? सो जा, आखिरी वक्त तुम्हारे साथ गुजार दूँ। आमना को वो उदास लगी। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी ज़ैनब, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, शुक्रिया। आमना ने नम आंखों से देखा। अब तुम भी शुक्रिया करोगी, ज़ैनब ने उंगली उठाकर पूछा तो आमना हंस दी। चलो अब जल्दी करो लड़की, वरना इस बूढ़ी को होश आ जाएगा। ज़ैनब ने नूरजहाँ की तरफ देखकर कहा। हाँ ठीक है। आमना ने कहते हुए ज़ैनब के साथ मिलकर टेबल हटाई, दीवार नुमा दरवाजे को स्लाइड किया, दरवाज़ा वो खुलता चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे के पार रोशनी थी, आज़ादी की रोशनी। आमना ने चेहरा मोड़कर ज़ैनब की तरफ देखा, जो पलकें झपककर आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम भी चलो ज़ैनब, यहाँ कुछ नहीं रखा। ज़ैनब ने नफ़ी में सर हिलाया। बाहर भी अब कुछ नहीं है आमना, तुम जाओ, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर दे। आई एम गोइंग टू मिस यू ज़ैनब, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, ज़ैनब ने कहते हुए आमना को गले लगाया। कुछ देर बाद अलग होते ही फिर गोया हुई। अपना ख़्याल रखना आमना, और ये बैग और चादर ले लो, पता नहीं बाहर तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। मैंने बैग में खाना सब ज़रूरी सामान रख दिया, और ये चादर ओढ़ लो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। आमना ने इस बात में सर हिलाते सब सामान थाम लिया। तुम भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़ ज़ैनब, अल्लाह हाफ़िज़। एक आखिरी बार फिर ज़ैनब के गले लग के वो आगे बढ़ गई। जानती थी कि पलट कर देखा तो फिर जान ना पाएगी। किसी को छोड़कर जाना कितना तकलीफ़देह होता है, इससे बेहतर कौन जानता था। ज़ैनब से दूर जाना तकलीफ़देह था। इतना कम वक़्त में उसने आमना के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। अब जुदाई मुश्किल थी। टॉर्च जलाए वो सीढ़ियों से उतरती बाहर के दरवाजे के सामने आई। इसके हाथ पूरी तरह कँपकपा रहे थे। दरवाजे की कुंडी खुली और बाहर निकल आई। खुफिया दरवाज़ा था, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। इससे ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और यही बात आमना के हक़ में बेहतर साबित हुई। इसने चारों तरफ नज़र घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। सन्नाटा छाया हुआ था। ये महल आगे से जितना खूबसूरत लगता था, पीछे से इतना ही खौफनाक था। अगर वो इस रास्ते से यहाँ आती तो उल्टे कदमों में वापस भाग जाती, इसलिए चादर से खुद को अच्छे से छुपा लिया और नकाब लेकर भागती चली गई। वो नहीं जानती थी वो किन रास्तों पे दौड़ रही है। इसको बस यहाँ से दूर निकल जाना था, जहाँ किसी की गंदी नज़र इस पे ना पड़े, ना उठे, जहाँ वो सुकून की ज़िंदगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार सके। उससे भागते-भागते कितना टाइम गुज़र गया था। बीच-बीच में रुक कर साँस बहाल करती, फिर दौड़ना शुरू कर देती। वो वहाँ से 2 बजे की निकली थी और अब 4 बज चुके थे। भागने की वजह से पैर दर्द कर रहे थे, हिम्मत जवाब देने लगी। वो रुक कर वहाँ मौजूद एक दीवार का सहारा लेती, अपने फूले नफ़्स को बहाल करने की कोशिश करने लगी। इसने नज़र उठाकर आसपास का जायज़ा लिया तो मानो सा इलाका लगा। वो थोड़े और आगे बढ़ी तो दूर से ही अपना घर नज़र आ गया। वो जाना नहीं चाहती थी, क्या मुँह दिखाती मामा को, अहमद को, लोगों को। आमना ने वापस पलटना चाहा, पर दिल के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़ गई। दिल ने बस एक नज़र देखने की ख्वाहिश की थी। निकाब तो वो लगाए बैठी थी, कौन पहचानता। इसलिए सोचा कि एक बार अपनी आंखों से देखकर फिर चली जाएगी, दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। आमना घर के दरवाजे के सामने आकर रुकी, पर दरवाजे पर लगा कफल इसका मुँह चढ़ा रहा था। इसकी उम्मीद टूट गई, आखिरी बार देखने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। वो यहाँ नहीं थे, ये कैसे हो सकते थे? लोगों की बातों से मजबूर होकर जाना ही पड़ा होगा। वो जो कालिक इनके मुँह पर मल गई थी, इसको छुपाने के लिए जाना ही पड़ा होगा। एक आँसू निकलकर इसके निकाब में जज़्ब हो गया था, तभी किसी की आवाज़ कानों से टकराई। कौन हो बेटी? आमना ने चेहरा मोड़कर देखा तो सलमान साहब थे, इनके पड़ोसी। आमना इनको देखकर गड़बड़ा गई, फिर खुद पे काबू पाती गोया हुई। वो यहाँ जो लोग रहते थे वो कहाँ हैं? सलमान साहब ने इसको मशकूक नज़र से देखा। उनको इस तरह देखने पर आमना फ़ौरन बोली, दरअसल मैं इनके दूर की रिश्तेदार हूँ, लाहौर से आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये लोग कहाँ गए हैं?
शुक्र था कि ज़ैनब ने आमना को बैग और चादर दे दी थी। वो बैग से फ्री बैग में ही लगता था, इसलिए फ़ौरन बात संभाल गई और एक तशक्कुर भरी नज़र बैग पर डाली। अरे बेटा, आप तो ये लोग यहाँ नहीं रहते। फ़ातिमा साहबा का इंतकाल के बाद इनका भतीजा घर को ताला लगाकर चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। ये खबर सुनकर तो आमना के सर पे गोया पहाड़ टूट पड़ा। आंसू थे जो बाहर निकलने के लिए बेताब थे। इंतकाल कैसे, क्या हुआ था? इसे अपनी आवाज़ किसी खाई में से आती सुनाई दी। अरे तुम्हें नहीं पता, इनकी बेटी भाग गई, घर वालों का मुँह काला कर दिया। कितने इज्जतदार लोग थे, लेकिन देखो बेटी ने क्या चांद चढ़ाया है। लोगों का कहना है उसे कोटे पर देखा है। अब ऐसे घर से भागेगी तो यही होगा। सही करते थे लोग, जो पैदा होते ही बेटी को जिंदा दफन ज़मीन में दफना देते थे। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। खैर हमें क्या, मैं तो चलता हूँ बेटी, वरना फजर की नमाज निकल जाएगी। तुम भी जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। अब वो यहाँ नहीं रहते। वो कहते हुए वहाँ से चले गए। वो सब सुनते वक्त आमना ने कितने आंसू अपने अंदर उतारे थे। दिल खून के आंसू रो रहा था। यही वजह थी जिसके लिए ज़ैनब ने इसे रोक रही थी। अब मुझे ज़ैनब की बातें सही मानों में समझ आई थी। इनके जाते ही आंसू पे बंदर बन टूट गया। वो आंसू भाती वहीं ढाह गई। मामा, मुझे सफाई का मौका तो देती, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अल्लाह क्यों मेरे साथ ऐसा किया? इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? मम्मा, वो रोती रही, चिल्लाती रही। कितना वक्त गुजर गया। आंसू खुश हो गए थे और दिमाग माउफ। रात का साया हटने लगा था। सुबह का उजाला निकलने पर इसकी ज़िंदगी में तो अब अंधेरा था। वो बैठी किसी गैर मरी नुक्ते पे गौर कर रही थी कि अचानक सामने से दो आदमी शराब के नशे में झूमते हुए अपनी तरफ आते दिखाई दिए। अपनी तरफ आता देखकर वो फ़ौरन उठकर अंधाधुंध भागी। अब कुछ और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। आमना सीधी सड़क की तरफ भाग रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। बाएं जानिब से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी। आमना गायब दिमागी की हालत में भाग रही थी कि बाएं जानिब से आती गाड़ी के सामने आ गई। उस गाड़ी वाले ने फौरी ब्रेक लगाया। आमना गाड़ी से टकराई, पर वक्त ब्रेक लगने की वजह से चोट नहीं आई। आमना ज़मीन पर ढह गई। गाड़ी से वो शख्स निकलकर फ़ौरन बाहर आया। आमना मुँह के बल ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। वो शख्स आमना के पास आकर घुटनों के बल बैठा और आमना को सीधा किया। आमना ने आँखें खोलने की कोशिश की, पर इसकी आँखें बंद हो रही थीं। वो नींद बेहोशी की तरफ जा रही थी। उस आदमी ने चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर वो बेहोश हो गई थी। उस आदमी ने आमना को उठाकर गाड़ी की सीट पर बिठाया कि अचानक उसके हाथ की घड़ी आमना के निकाब पे अटकी और निकाब उतर गया और वो शख्स अपनी जगह साकित रह गया। उसने आँखें खोलने की कोशिश की, पर सर में उठती ठेस की वजह से दोबारा बंद कर ली। इससे अपना वजूद किसी नरम व मुलायम बिस्तर पर पड़ा महसूस हो रहा था। इसके कानों में आवाज़ें आ रही थी, गोया ये कि कोई इसे पुकार रहा है। एक दर्द भरी, एक दुख भरी, एक प्यार भरी आवाज़ में कोई इस पे झुका इसे उठा रहा था। आमना ने हल्के से अपने होठों को चंबिश देकर पुकारा, अहमद। यस माई लेडी। अहमद की मुस्कुराती आवाज़ की कानों से टकराई। आमना ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। अहमद को अपनी नज़रों के सामने पाया। वो यकदम उठ बैठी। आराम से लड़की, किस बात की जल्दी रहती है? वो मुस्कुरा के बोला, देखो आज का दिन कितना अच्छा है। तुम्हें पता है मैं रोज़ ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। आज जल्दी उठकर ऑफिस जाने के लिए घर से निकला और तुम मिल गई। सही कहते हैं, इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसमें अल्लाह की रहमत है। वो मुस्कुरा कर इसे बता रहा था। आमना खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्या वो इसके बारे में नहीं जानता? जब वो पूरी दुनिया को पता है तो फिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? वो सिर्फ सोच के रह गई, बोली कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोलोगी भी? आमना खामोश देकर फिर गोया हुआ। आमना खामोशी से बेड पर से उतरी और सोफे की तरफ गई जहाँ इसकी चादर पड़ी थी। अहमद जो खामोशी से बैठा उसकी सारी कार्रवाई दिख रहा था, उसको चादर उठाता देखकर फ़ौरन उठकर उसके पास आया। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? आमना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से चादर खुद पर लेने लगी। तभी अहमद ने आगे बढ़कर उसके हाथों से चादर छीनी। क्या कर रही हो? हाँ, अब कहाँ जा रही हो? पागल दिखता हो तुम्हें? जब दिल करेगा आ जाओगी, जब दिल करेगा छोड़ के चली जाओगी। हाँ बोलो। अहमद गुस्से से चिल्लाया। आमना इसके चिल्लाने से सहम गई। पहली बार इसका गुस्सा देखा था। वो डर के पीछे हटी। सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, बहन, माँ बाप, चचा चाची, और तुम भी पता है कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया तुम्हें। मैंने हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिली। तुम्हारे गम में चच्ची भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला रह गया। अब जब तुम मिली हो तो फिर चली जाओ। सब मुझे छोड़ जाओ। ये कहते हुए अहमद रोने लगा। आमना का दिल दुखा। वो जानती थी अहमद हमेशा से रिश्तों के मामले में कितना एहसास था। इसका दिल करा के बोल दे कि कहीं नहीं जा रही उसके पास ये, पर तभी तभी उसको अपने कानों पे ज़ैनब की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रही थी, मर्द में इतना ज़र्फ नहीं होता कि एक ज़ानिया औरत को अपना नाम दे सके। हाँ, लेकिन अगर तरस खाकर तुम्हें रख भी लिया तो अपने साथ तो सारी ज़िंदगी तुम पे तंज के तीर चलाता रहेगा आमना, और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। आमना के दिल ने कहा। जिस ज़बान से अपने लिए प्यार भरे लफ्ज़ों के सिवा कुछ नहीं सुना, तो कैसे उसके मुँह से अपने लिए ज़ानिया का लफ्ज़ सुनती। आमना ने अपने हाथों की तरफ देखा जो अहमद की मजबूत गिरफ्त में थी। वो फ़ौरन हाथ छुड़ाती तेज़ी से कमरे से बाहर भागी।
सुनो आमना रुक जाओ यार, प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा अकेला। आमना वो चिल्लाते हुए इसके पीछे भागा और उसका बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हें तुम्हें क्यों मुझ पे तरस नहीं आता? हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती हो तुम? कितनी दुआएँ माँगी थी मैंने अल्लाह से कि तुम लौट आओ, पर तुम वापस जाने के दर पर हो। क्यों? जवाब दो, क्या तुम नहीं जानते? आमना ने पलट कर सवाल किया। सब जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है मैं एक ज़ानिया औरत, एक तवाइफ़। आमना बोल ही रही थी कि इसकी बात अधूरी रह गई। अहमद का हाथ उठा और आमना के मुँह पर निशान छोड़ गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे आँसू बहाती अहमद को देख रही थी, जो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से ये अल्फ़ाज़ बकवास ना सुनूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, क्या जानती है, बस मैं ये जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अब तो मैं नहीं खो सकता। प्लीज़ आमना मत जाओ, मैं अकेला हो गया हूँ, तुम तो मत जाओ। मैं कसम खाता हूँ कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ दुःख मेरी तरफ से नहीं पहुँचेगी, कभी नहीं तुम्हें ताने नहीं दूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। आमना प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। वो कहता हुआ घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। इसको यूँ रोता देखकर आमना के दिल में तकलीफ़ हुई, इसकी आँखों से भी आँसू निकलने लगे, वो भी इसके साथ ज़मीन पर बैठ गई। अहमद मम्मा, आमना ने रोते हुए पूछा। अहमद ने चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा, जो अब अपनी माँ के गम में आँसू बहा रही थी। अहमद ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों एक-दूसरे के गले से लगे आँसू बहाते रहे और अपने दुःख दर्द बाँटते रहे। वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा था, आमना अब कोई नमाज़ नहीं छोड़ती थी। अहमद उसमें ये तब्दीली पहले देखना चाहता था, पर अब आमना को इस तरह देखकर उसे तकलीफ़ होती थी। वो आमना को पहले की तरह हँसता-खेलता देखना चाहता था। वो अक्सर बच्चा बनकर आमना के साथ शरारतें करता, और जब आमना इसकी हरकतों को देखकर खिलखिलाती, तो अहमद को अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस होता। उधर आमना भी अपने रब का जितना शुक्र अदा करती थी, कम था, जिसे अल्लाह ने अहमद जैसा साथी दिया था, जिसे किसी और की बात की परवाह नहीं थी। आमना इसके साथ ही ये काफ़ी था। आमना क्या है, उसके साथ क्या हुआ, दुनिया क्या कहती है, इन बातों से अहमद को कोई गर्ज न थी। सही मायनों में इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अब शुरू हुई। 2 साल ऐसे ही गुज़र गए। अल्लाह ने आमना और अहमद को अपनी रहमत से नवाज़ा। उनके घर बेटी पैदा हुई, बरीरा। आमना बरीरा की वजह से काफ़ी हद तक मसरूफ़ हो गई थी और माज़ी की बातों से बाहर निकलने लगी थी। इसको इस तरह देखकर अहमद भी खुश होता था। दुनिया मुकम्मल सी लगने लगी थी। बरीरा के आने से दोनों की ज़िंदगी जन्नत सी बन गई थी। बरीरा 2 साल की होने वाली थी कि एक दिन आमना और अहमद डॉक्टर से बरीरा का चेकअप करवा कर वापस आ रहे थे कि रास्ते में आती एक गाड़ी से बुरी तरह टकराए। टक्कर इतनी बुरी हुई थी कि दूसरी शख्स की गाड़ी पलट गई और अहमद की गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई। अल्लाह ने बरीरा को बिल्कुल महफूज रखा, मगर अहमद को शदीद चोटें आई थी और आमना वो मौके पर ही दम तोड़ गई। सिर्फ 4 साल का साथ गुजार कर वो एक बार फिर अहमद को अकेला छोड़ गई थी। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया था। आमना की खबर अहमद पर क़यामत बनकर टूटी। अपने प्यारों को अपनी आँखों के सामने मरता देखना कितना अज़ियतनाक होता है, अहमद से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। आमना के जनाज़े में शरीक होने वाले लोगों में से अक्सर आमना को पहचान गए थे। अरे तुम्हें पता है ये घर से भागी गई थी, वहाँ बैठी एक खातून ने दूसरी से कहा। अच्छा वाक़ई? हाँ सुना है, लोगों ने तो इसे कोठे पर भी देखा है, ये एक तवाइफ थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। पहली औरत की बात सुनकर दूसरी फ़ौरन बोले और वहीं थोड़े फ़ासले पे खड़े अहमद से मज़ीद सुनना बर्दाश्त नहीं हो तो चिल्ला उठा। निकले निकले आप लोग यहाँ से ताज़ियत के लिए आए या मेरी बीवी पे कीचड़ उछालने? अब आप तो इस दुनिया में भी नहीं रही, लेकिन आप लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। जाइए यहाँ से, निकल जाइए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अच्छा ख़ासा वहाँ तमाशा लग गया था, लोग बातें बनाते वहाँ से जाने लगे थे। पूरा लॉन्च खाली हो गया था। वहीं अहमद रोता हुआ घुटनों के बल बैठता चला गया। इस अरसे में अहमद ने खुद को सिर्फ ऑफिस का ही कर लिया था। बरीरा के लिए अहमद ने बीजान को रख लिया था। खुद आमना के गम में ये तक भूल गया था कि इसकी बेटी उसकी ज़रूरत भी है। वक्त गुजरता जा रहा था, बरीरा बड़ी हो रही थी। जब एक दिन वो अपने घर से बाहर खेलते बच्चों को देखकर उनके पास गई। मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी? बरीरा ने वहाँ खेलते बच्चों से पूछा। नहीं, मेरी मम्मी ने मना करा है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुम गंदी बच्ची हो, तुम्हारी मम्मी भी गंदी थी, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, जाओ यहाँ से। एक बच्ची ने कहते हुए बरीरा को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। बरीरा संभल ना सकी और एक पत्थर पर इसका सर जा लगा। खून तेजी से बह रहा था। बीजान भी किचन में खड़ी बरीरा को ही खिड़की से देख रही थी। बरीरा को यूं गिरते देखा फ़ौरन बाहर भागी। बीजान उसे लेकर घर में आ गई थी। डॉक्टर को भी घर पे बुला लिया और अहमद को भी कॉल करके सब बता दिया। डॉक्टर बरीरा की पट्टी करके जा चुका था। अहमद घर पहुंचे तो बरीरा अपने कमरे में सो रही थी। बरीरा को इस तरह बेड पर लेटा देखकर अहमद को अपनी कोताही का एहसास हुआ। अहमद उसके करीब ही बेड पर बैठ गया। बरीरा ने भी इसकी मौजूदगी को महसूस किया तो आंखें खोल दी और सामने अपने बाबा को बैठा पाया। पापा, बरीना ने अहमद को पुकारा। तकलीफ़ के इसके चेहरे से वाज़ेह होती और उठकर अहमद के गले लग गई। अहमद ने भी इसके गिर्द बाजू फैला दिए। ये क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अहमद ने प्यार से पूछा। पापा, मैं तो बस उनके साथ खेलना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं करा था, पर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मेरा सर पत्थर से लग गया और मुझे गंदी बच्ची बोल रहे थे और मम्मा को भी गंदी बोल रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया। क्या मैं गंदी हूँ?
वो मासूमियत से अपने बाप की तरफ देखकर सवाल कर रही थी। अहमद के दिल में ठेस सी उठी। बीजान पहले ही बता चुकी थी और अब बरीरा की हालत देखकर बर्दाश्त न हुआ। एक आंसू निकल कर गाल पर बह गया। अहमद बरीरा को गले से लगाए हुआ बोला, मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी है, गंदे तो वो लोग हैं, आपको किसी के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं खेलूंगा अपनी गुड़िया के साथ। वाक़ई पापा आप खेला करेंगे मेरे साथ? वो अहमद का चेहरा अपने नन्हे-मुन्ने हाथों में लेकर चहक के पूछने लगी। हाँ, मैं खेलूँगा। हम दोनों बाप-बेटी ऑफ़िस से आने के बाद बाहर जाया करेंगे। आपको किसी के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, बस आज से गुड़िया के साथ इसके पापा खेला करेंगे, ठीक है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा। बाप का प्यार मिलने पर बरीरा भी अपना दर्द भूलकर बाप के साथ बातों में लग गई। वक़्त के साथ-साथ वो बड़ी होती जा रही थी, लोगों की बातें भी इसके लिए बढ़ती जा रही थी। अहमद उसको अब टाइम देने लगा था, लेकिन एक दोस्त की कमी बरीरा को भी फिर भी महसूस होती थी, जब वो स्कूल में सब खेलते देखती। वक़्त गुज़रता गया, उसने खुद पे खौल चढ़ा लिया, अब वो किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। लेकिन एक दोस्त की कमी को शिद्दत से महसूस करती, जिससे वो बातें कर सके, जिससे वो अपना लंच शेयर कर सके, जिससे लड़े और फिर मना ले, लेकिन इसके पास तो कोई भी नहीं था। मगर अल्लाह ने ये कमी दूर कर दी, अनाया की सूरत में। अल्लाह ने एक इंसान के रूप में इस नन्ही सी परी के लिए फ़रिश्ता भेज दिया था। बरीरा उससे कोई बात नहीं करती थी, ना ही उसकी बातों का जवाब देती थी। बरीरा ने जो खोल अपने इर्द-गिर्द बाँधे थे, उसमें समेट कर रह गई थी, लेकिन अनाया की कोशिशों ने इस दीवार को गिरा दिया था। वो खुद बरीरा से बातें करती, उसको अपना लंच देती। अगर बरीरा को कोई कुछ बोल देता, तो वो खुद आगे आकर उसके साथ लड़ती। अनाया की मोहब्बत और अपनायत को बरीरा को फिर से बचपन जीने पर मजबूर कर दिया था। वो भी आम बच्चों की तरह खेलने लगी थी, हँसने लगी थी। उधर ही इनके पड़ोस में मिस्टर जहांगीर की फैमिली आ गई थी। मिसेस जहांगीर एक दीनदार खातून थी। वो अक्सर बरीरा के लिए खाना बनाकर भेजती और उसे अपने घर बुलाती। बरीरा भी इनकी पुरखुलूस मोहब्बत को देखकर इनकी तरफ बढ़ने लगी। वो अक्सर इनके घर जाकर इनके साथ मिलकर घर के काम करवाती। मिसेस जहांगीर की बेटी का अंदाज लिया दिया था, इसलिए बरीरा से सिर्फ काम की बातें करती थी और बरीरा भी इसकी आदत को जानते हुए बुरा नहीं मानती थी। वक़्त पर लगाकर उठता गया, वो बड़ी हो गई, लोगों की बातें भी उसे समझ आने लगी। वो अक्सर इनकी बातों से दिल बरचता हो जाती थी, वो आदी हो गई थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को दिल पर लगाकर रोने लगती। तभी अहमद ने इसको अमेरिका भेज दिया। वो चाहते थे कि बरीरा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाए, पर बरीरा के इनकार पर सिर्फ पढ़ाई के लिए इसको भेज दिया, लेकिन अपना इरादा इस पर ज़ाहिर कर दिया कि इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले वो खुद अमेरिका शिफ्ट हो जाएँगे, ताकि बरीरा को यहाँ आना ना पड़े। पर लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। बिजनेस में होने वाले नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सके और हार्ट अटैक के बायस अस्पताल पहुंच गए। बीजान ने बरीरा को फ़ोन करके इत्तला दे दी थी। इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी, वो फ़ौरन वहाँ से आ गई। नरगिस ने इस दौरान इसका बहुत साथ दिया, पर वो बरीरा की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हुई। अहमद की हालत संभल ना सकी और बरीरा को बीजान के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। अहमद के बाद बरीरा को वो घर काटने को दौड़ता। कितनी यादें थी बाप बेटी की। बरीरा अक्सर अहमद को याद करके रोती थी, इसलिए अनाया और बीजान के समझाने पर इसने वो घर बेच दिया। कुछ लोगों की बातों का भी असर था कि बाप के इस दुनिया से जाते ही लोगों ने इसके लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी, इसलिए वो घर बेचकर और आखिरकार मिसेस जहांगीर के साथ वक्त गुजार कर यहाँ चली आई थी, सुकून की खातिर, यादों से छुटकारे की खातिर। हाल कमरे में खामोशी छाई हुई थी। कैफ ने चेहरा उठाकर बीजान की तरफ देखा, जो इसे ही देख रही थी। कैफ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो बीजान भी इसके साथ ही खड़ी हो गई। अब मैं चलता हूँ, कैफ ने कहा तो बीजान के चेहरे पे परेशानी उतर आई। कैफ उनका परेशान चेहरा देखकर फिर गोया हुआ, तो फिक्र ना करे, रात हो गई इसलिए जा रहा हूँ, कल सुबह ज़रूर आऊँगा, अपना और बरीरा का ख्याल रखिएगा। कैफ के इतने कहने पर बीजान के चेहरे की चमक वापस आ गई। बस बात में सर हिलाकर गोया हुई। ठीक है, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आती हूँ। नहीं आंटी, मैं चला जाऊँगा, आप बरीरा का ख्याल रखें। बरीरा के लिए कैफ की इतनी फ़िक्र देखकर बीजान को खुशी हुई। अरे नहीं बेटा, पहली दफ़ा आए हो, अच्छा नहीं लगता, मैं तो तुमसे कुछ खाने पीने का भी नहीं पूछ सकी। बीजान को अब याद आया तो शर्मिंदा होने लगी। कोई बात नहीं आंटी, मैं वैसे भी यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया था, जिस काम से आया था वो हो गया, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे तक चलूँगी, बीजान ने फिर कहा, तो इस बार कैफ मना ना कर सका और इनके साथ फ्लैट से बाहर आ गया। बेटा इतनी रात हो गई, आज इधर ही रुक जाते। वो पार्किंग एरिया में आए, जहाँ असलम गाड़ी में बैठा कैफ का ही इंतज़ार कर रहा था। शुक्रिया आंटी, पर मेरा घर यहाँ से 20 मिनट के फासले पर है, इसलिए मुझे आपका घर ढूँढने में ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तुम्हें एड्रेस कैसे मिला? कैफ की बात पे बीजा ने फ़ौरन पूछा तो कैफ ने नरगिस की मुलाकात से लेकर मिसेस जहांगीर की मुलाकात तक सारी बात बता दी। अच्छा, बीजान ने सर हिलाते कहा, ये नंबर रख लें, कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देगा। कैफ ने बीजान की तरफ अपना कार्ड बढ़ाया, सर उठाकर फ्लैट की तरफ देखा तो इसके माथे पर बल पड़ गए। बेवकूफ़ लड़की, या तो मुसीबत इसके पीछे होती है या फिर खुद मुसीबत के पीछे होती है। कैफ गुस्से से बड़बड़ाई, लेकिन आवाज़ इतनी ऊँची थी कि बीजान ने बाखूबी सुन ली। जैसे मुड़कर देखा तो दहल के रह गई। बरीरा बालकनी में खड़ी
ग्रिल से नीचे झाँक रही थी। बरीरा का अंदाज़ देखकर ही कैफ की छठी हिस्स ने उसे सिग्नल दे दिया था। आंटी अब इसका ध्यान अपनी तरफ रखें, मैं जाकर इसे वहाँ से हटाता हूँ, कैफ कहता हुआ अंदर बढ़ गया। बीजान आगे बढ़कर बरीरा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी। बुरी बा बेटा बुरी बरी बेटा मेरी बात सुनो, तुम पीछे हट जाओ, गिर जाओगी बेटा। लेकिन बरीरा सुनी कहाँ रही थी। इसने एक टांग उठाकर ग्रिल पर रख दी। नहीं बेटा हट जाओ, बीजान रोते हुए बोली। बरीरा ने दूसरी टांग भी पर उठा ली और ग्रिल पर से हाथ हटा दिए। बरीरा, बीजान ने चिल्लाते हुए दिल पर हाथ रख लिया। बरीरा गिर से नीचे लटकी हुई थी, इसके हाथ कैफ की मजबूत गिरफ्त में थे। कैफ ने अपनी ताकत लगाकर इसे ऊपर नीचे किया, ऊपर खींच लिया। छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं जीना, मुझे और मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे। बरीरा खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। कैफ का दिल करे एक और थप्पड़ लगा दे, लेकिन इसकी हालत पर तरस खाकर रुक गया। इतने में बीजान भी आ गई तो कैफ बरीरा को छोड़कर पीछे हट गया। बीजान ने रोते बरीरा को पकड़ा, जो एक हारे हुए जुआरी की तरह वहीं बैठ गई थी। सब कुछ तो हार दिया था इसने, माँ बाप, इज्जत, सबर, बर्दाश्त, अब कुछ नहीं था इसके पास। बीजान, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अब तो पापा भी नहीं, मैं जी कर क्या करूँगी। वो रोते हुए बीजान के गले लग गई। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते, मुझ बूढ़ी औरत पर रहम कर, मेरे तेरे सिवा कोई नहीं, सब्र कर ला, सब ठीक कर देगा। बीजान ने इसका सर सहलाते हुए कहा। कैफ खामोशी से सर खड़ा बरीरा को देख रहा था। वो वाकई उससे काबिले रहम लगी। आंटी से कमरे में ले चले, हाँ ठीक है। बीजान सर हिलाती उठ गई और बरीरा का बाजू पकड़ा। कैफ ने आगे बढ़कर बरीरा को उठाने में मदद की और उसे कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया। कैफ ने साइड टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी निकाला और अपनी पैंट की जेब से कुछ निकालकर बीजान के आगे कर दिया। ये दवाई खिला दे, इससे आराम आ जाएगा। बीजान ने इस बात में सर हिला के दोनों चीज़ें थाम ली, फिर बरीरा को थोड़ा ऊपर उठाया और दवा खिला के वापस लेटा दिया। बीजान उसके पास बैठी बालों में हाथ फेरी थी। बरीरा ने आंखें बंद कर ली। कैफ कमरे में रखे काउच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब बरीरा के सोने का यकीन हो गया तो वो बीजान से बोला, आंटी अब आप भी जाकर आराम करें। लेकिन बेटा, बीजान ने कुछ बोलना चाहा, मगर कैफ उनकी बात के दरमियान ही बोला, ये अब सुबह ही उठेगी, इसलिए आप फिक्र ना करें, मैंने स्लीपिंग पिल दी है, वो अब नहीं उठेगी। कैफ अक्सर ही स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करता था, इसलिए हमेशा इसके पास ही होती थी। आपने शायद कुछ खाया भी नहीं, इसलिए पहले जाकर कुछ खा ले, फिर सो जाएगा। मैं अब चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। कैफ कहता हुआ उठ गया। ठीक है बेटा। वो उठ के कैफ के साथ दरवाजे तक आई। कैफ खुदाफिज कहता बाहर चला गया तो बीजान ने भी गहरा सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कैफ पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी में बैठ के असलम को चलने का कहा। असलम, जो बड़े मज़े से कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुनता गाड़ी की सीट पर से सर टिकाया बैठा था। कैफ की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठा और सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया। कैफ शीशे के पार नजर आते चांद को देखता हुआ अपनी सोचों में घूमता, जब असलम की आवाज़ पर अपनी सोच से बाहर आया। सर, आपने जिन दो आदमियों के पीछे भेजा था, इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है, वो किसी लुकमान नामी शख्स के आदमी थे। असलम ने बैक व्यू मिरर से कैफ को देखते हुए बताया। ये लुकमान कौन है? कैफ ने पूछा। लुकमान यहाँ का जाना माना बिजनेसमैन है। लुकमान ने बरीरा मैडम के डैड अहमद साहब के साथ पार्टनरशिप की थी और ये भी मालूम हुआ है कि अहमद साहब के बिजनेस में नुकसान के पीछे इसी का हाथ है। असलम असलम ने तफसील से बताया। ठीक है, मुझे इस लुकमान के बारे में सारी मालूमात ना कर दो जल्द से जल्द, और इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, रेयान को भी नहीं, समझे? जी सर, असलम ने सर हिलाते हुए कहा। कैब वापस चांद की तरफ देखने लगा। अभी से सिर्फ और सिर्फ बरीरा का ख्याल था। कैब घर पहुंचा तो लॉन्च में ही गुस्से से भरे रेयान को देखा, जो सोफे पे टांग चढ़ाए इसी के इंतजार में बैठा था। कैफ ने शुक्र अदा करके रेयान को अपने साथ में ले गया था। वो जो भी था बरीरा का पर्दा इसे रखना था। मैं ज़रा सो गया था, तुम मौका गनीमत जानकर अकेले निकल गए। यहाँ आते ही तुम्हारे पड़ लग गए। क्या आफत आ गई थी जो अकेले ही बरीरा को ढूंढने निकल गए? वो तो मुझे असलम से पता चल गया कि तुम बरीरा के घर हो, वरना तुमसे तो कोई उम्मीद ही न थी। कैफ के अंदर आते ही रेयान शुरू हो चुका था। कैफ जलाने वाली मुस्कुराहट लिए इसकी बातें सुनता रहा। तुमसे बकवास कर रहा हूँ, कुछ बोलोगे भी? रेयान इसको मुस्कुराता देखकर जलकर बोला। वो दोनों कल यहाँ आ जाएंगी, इसलिए कमरों की सफाई करवा लेना। मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, भूख नहीं है, इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। गुड नाइट। कैफ रेयान की बातों को इग्नोर करता एक ही सांस में बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, ताकि रेयान की मजीद बातों से बच सके, और रेयान बस इसको जाता देखता रहा। इसकी तो मैं गुलाम समझ लिया अपना, रेयान सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। बीजान की आंख इस बेआदत फजर की नमाज के वक्त खुली तो उन्होंने उठकर वजू करने के बाद नमाज अदा की और बरीरा के कमरे में चली आईं। वो अभी भी सो रही थी। कैफ की दी हुई दवाई का असर था, वरना वो रोज़ उठकर नमाज अदा करती थी। बीजान खड़ी से देख रही थी, जो हालात की सतम ज़रफ़ी पर आंसू बहाती सोई थी। आमना के माजी की एक भी ज़रा सी ख्वाहिश ने आमना के बाद बरीरा की ज़िंदगी को भी अजाब में मुब्तला कर दिया था। वो एक तवाइफ की बेटी वक्त गुजरने के साथ साथ खुद भी तवाइफ कहलाने लगी। बचपन में सिर्फ तवाइफ की बेटी थी, पर बड़े होते तवाइफ की बेटी से सिर्फ तवाइफ ही रह गई। बीजान इस पर दम करती, इसकी खुशियों के लिए अल्लाह से ढेरों दुआएं मांगती, कमरे से निकल गए और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी।
सूरज की किरणें आसमान पर फैल चुकी थी। खिड़की से छन से आती धूप इसके चेहरे पे पड़ी तो वो उठ बैठी। रात को रोने के बाद सर भारी हो रहा था। आंखें कभी बमुश्किल खोल पा रही थी। जब से कमरे के बाहर से बातों की आवाज़ आने लगी। वो उठकर बाहर आई तो हैरान रह गई। बीजान और कैफ सोफे में बैठे हंस हंस कर बातें करते चाय का लुफ्त उठा रहे थे। इनके दरमियान की बेतकल्लुफ़ी ने खासा हैरान कर दिया। अरे बेटा उठ गई, बीजान ने इसे खड़ा देखकर प्यार से कहा। इसने चेहरा मुड़कर कैफ की तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। एकदम इसे कल होने वाला वाक़या याद आया तो शर्म से सर झुका दिया। जी बीजान आप लोग बातें करें, मैं भी आई। वही कहकर मुड़ी कैफ की बात पर रुक गई जो बीजान से कह रहा था। मैं चलता हूँ बीजान, अभी कुछ काम है, शाम को लेने आऊँगा, तब तक आप लोग अपना सामान पैक कर लें। कैफ की बात पर बरीरा हैरान होती से देख रही थी और बीजान वो तो उसके मुँह से बीजान सुनते ही निहाल हो गई। बकौल बीजान के 440 वाट के 1000 बल्ब भी लेकर ढूंढेंगी तब भी वो ऐसा मुंह बोला दामाद नहीं मिलेगा। मैं कहीं नहीं जा रही। बरीना ने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। बीजान मैं चलता हूँ, आप समझा देगा। कैफ इसको इग्नोर करता है बेताबी बीजान से बोला। मैं कहीं नहीं जाऊँगी बीजान, इन्हें भी समझा दें। बरीरा भी इसी के अंदाज में बोली। बीजान कैफ ने मासूम से बीजान की तरफ देखा। तभी बीजान बरीरा को आंखें दिखाकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोली, ए लड़की जाओ जाकर सामान पैक करो। बरीरा तो शौक रह गई। इसकी बीजान थी, इसे यकीन ना आया। कैफ ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ देखा और बीजान को खुदाफिज करता बाहर चला गया। बरीरा भी पैर पटकते अंदर कमरे में चली गई। बीजान कमरे में आई तो मुंह फुलाकर बैठी थी। बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो इसके पास जाकर बेड पर ही बैठ गई। क्या हुआ मेरी बरी को? बीजान ने इसका चेहरा अपनी तरफ देखकर पूछा। आपको नहीं पता? बरीरा ने खफी से पलट कर सवाल किया। बीजान मुस्कुराई। ये क्यों आया यहाँ? बरीरा ने फिर खफी से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता क्यों आया है? बीजान के सवाल पर इसने उलझन भरी नजरों से ने देखा। वो तुमसे शादी करने के लिए आया और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बीजान ने पुरसुकून अंदाज में बताया। आपने उसे सब बता दिया? बरीरा बीजान की बात सुनकर शॉक रह गई थी। फिर खुद को संभालते हुए बोली, तो बीजान ने अपनी और कैफ की रात में होने वाली सारी गुफ्तगू इसके कोश गुजार कर दी। ये भी कि वो उनके घर तक कैसे पहुंचा। बरीरा खामोशी से आंखें फाड़े इन्हें देख रहे थे। वो फिर गोया हुई। आज सुबह मिसेस जहांगीर का फ़ोन आया था। वो अपनी और कैफ की मुलाकात के बारे में बता रही थी और ये भी कहा कि तुम्हें बता दूँ, आपको उसके मामा के बारे में नहीं बताना चाहिए था। आपको उसे मामा के बारे में नहीं बताना चाहिए था। बरीना ने बीजान की सारी बात सुनकर बस इतना ही बोली। क्यों? वो तुमसे शादी करना चाहता है, उसको सब मालूम होना चाहिए। पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उससे कह दें वो यहाँ से चला जाए। बरीना सर झुकाया अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली, ये वही कैफ है ना जिसका जिक्र तुम अक्सर करती थी? बीजान के सवाल पर अब की बार बरीना ने नज़र उठाकर इन्हें देखा तो बीजान फिर बोली, मैं जब भी तुमसे अमेरिका के बारे में पूछती तो वहाँ का जिक्र आते ही तुम्हारी ज़बान पे कैफ का ज़िक्र आ जाता था। तो मुझ पर पहले गुस्से थी लेकिन गुस्से की जगह आहिस्ता-आहिस्ता सिर्फ़ एहसानों ने ले ली और जो उसने तुम्हारी मदद करके करी थी वही कैफ है ना? मीज़ान ने फिर पूछा तो बरीरा ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है कि वो भी मर्द मुँह उठाकर आएगा और बोलेगा कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता तो मैं मान जाऊँगी? सब बता दूँगी उसे। नहीं, मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि ये वही कैफ है जिसको मेरी बरीरा पसंद करती थी। तुम जब भी उसका ज़िक्र करती थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था बरी कि तुम उसको पसंद करती हो, बस बोलती नहीं हो। ऐसा ही है ना? बीजान की बातों बरीरा झप गई मगर बोली कुछ नहीं। मैं देखना चाहती थी सब जानने के बाद भी वो तुमसे शादी करेगा या नहीं, पर उसने पता है क्या कहा? बीजान मुस्कुराई। उसने कहा अगर तुम तवाइफ होती होती भी तो तभी वो तुमसे शादी कर लेता। उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया। वो खाली हाथ नहीं जाएगा फिर चाहे तुम चाहो या नहीं। बीजान ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। बरीरा ने नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा। तुम्हें पता है कैफ की बातों पर मुझे इतनी हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं एक ऐसा ही मर्द बहुत पहले देख चुकी थी। जानती हो कौन? बरीरा ने नफ़ी में सर हिलाया। बीजान मुस्कुरा दी। मुझे उसमें तुम्हारे बाबा का अक्स नज़र आता है। जब मुझे तुम्हारी मम्मा के बारे में मालूम हुआ मैं हैरान हुई थी। क्या कोई मर्द ऐसा भी हो सकता है जो सब कुछ जानने के बाद उस औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, उसे इज़्ज़त दे, प्यार दे? तुम्हारे पापा वाक़ई एक अच्छे बेटे, शौहर और बाप साबित हुए। मुझे कैफ भी तुम्हारे बाबा का अक्स लगता है। मुझे यकीन है वो भी तुम्हारे लिए एक साएदार शजर साबित होगा। मीज़ान ने कहते हुए बरीरा को गले से लगा लिया जो बाप के ज़िक्र पे आँसू बहाने लगी थी। पर मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी। लोग सोचेंगे मैं मुँह छुपा कर भाग रही हूँ। पागल लड़की, इसमें मुँह छुपाने वाली कौन-सी बात है? जब तुम्हारा मुँह बोला शौहर अमेरिका में रहता है तो तुम भी वहीं रहोगी। अब उसकी रुखसती तो हम अमेरिका से पाकिस्तान नहीं करवा सकते ना।
बीजान ने इसके सर पे हल्के से हाथ मारकर कहा तो वो हँस दी। अच्छा मैं अकेली नहीं जाऊँगी, आप भी मेरे साथ चलेंगी। बरीरा ने उनके गले लगकर चेहरा उठाकर उनको देखा। अब ये तो तुम अपने मुँह बोले शौहर से पूछना कि वो इस बूढ़ी को अपने साथ लेकर जाएगा या नहीं। बूढ़ी अभी तो आप जवान हैं, मैं तो सोच रही हूँ आपके लिए भी हैंडसम से अंकल का इंतज़ाम कर दूँ। बरीरा ने शरारत से कहा। बदमाश, बीजान ने मसनूई गुस्से से घूरा, फिर दोनों हँस दीं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? अब तो बरीरा भी मिल गई, घर भी ले आए हो, तो वापसी की तैयारी क्यों नहीं करते? बरीरा और बीजान को कैफ को अपने साथ घर ले आया था। इन्हें आए तीनों दिन हो गए थे, लेकिन कैफ ने वापसी जाने का कोई नाम नहीं लिया था और अभी भी कैफ लैपटॉप ऑन किए अपने कमरे में बैठा जब रेहान उसके सर पर जा पहुंचा। मुझे कुछ काम है, कैफ लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए बोला। ऐसा भी क्या काम है जिसका मुझे इल्म ही नहीं? रेहान के बोलने पर कैफ ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और अपने पास पड़ी फाइल उठाकर रेहान की तरफ बढ़ा दी। रेहान फाइल थामकर उसे पढ़ने लगा। ये मिस्टर अहमद कौन है? रेहान ने सवाल किया। कैफ ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शोभा हो। ओह हाँ, याद आ गया, वो बरीरा के डैड। कैफ के यूं देखने पर रेहान फौरन बोला। लेकिन तुम इन सब का क्या कर रहे हो? रेहान उलझा। बरीरा के डैड को जो बिजनेस में नुकसान हुआ इसके पीछे लुकमान का हाथ था, जैसे कि तुम इस फाइल में पढ़ चुके हो। मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करवाए हैं। इसने सिर्फ मिस्टर अहमद के साथ ही नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ धोखा किया है। मैं इसके खिलाफ केस करवाना चाहता हूँ। कैफ की बात पर रेहान ने चौंक कर देखा। तू पागल है क्या? कैफ क्यों पर पराए फड्डे में पड़ रहा है? हम यहाँ बरीरा को ढूंढने आए थे, लोगों पर केस करने नहीं। रेहान को कैफ की बात पर शदीद गुस्सा चढ़ा, पर कैफ इसे क्या बताता कि अब ये इसके लिए पराया फड्डा नहीं। अब बात बरीरा की है। लुकमान जो बरीरा के साथ क्या किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है इसके लिए। मैं फैसला कर चुका हूं और मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। इस बार कैफ की बात पर दरवाजे पे खड़ी बरीरा ने जवाब दिया। इन दोनों के दरवाजे की तरफ पीठ थी, इसलिए बरीरा को आते नहीं देख सके। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बरीरा कमरे के अंदर आते हुए बोली। कैफ ने रेहान की तरफ देखा। रेहान फौरन सर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। तभी कैफ बरीरा की तरफ को देख कर गोया हुआ। तुम्हें पता है उस दिन जो आदमी तुम्हें फ्लैट से निकाल रहे थे वो लुकमान के बंदे थे। मैं जानती हूँ वो मुझे मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते ताकि मैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सकूँ और अपने मसले में फंसी रहूँ। बरीरा ने सुकून से बताया। तुम्हें पता है फिर भी तुम उसके खिलाफ केस नहीं करोगी? कैफ बरीरा की बात पर हैरान रह गया, फिर गुस्से से बोला। नहीं, दुनिया की कोई अदालत मुझे इंसाफ नहीं दिला सकती कैफ। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा माली नुकसान पूरा कर देगा, लुकमान को जेल में डाल देगा। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद वो जेल से वापस आ जाएगा, लेकिन मेरा नुकसान तो सारी ज़िंदगी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगर लुकमान के खिलाफ केस लड़ने से बाबा वापस आ जाते तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। फरीदा की बात पर कैफ खामोश रहा। जानता था दुनिया से चले जाने वाले वापस नहीं आया करते। मैं अपना इंसाफ अल्लाह की अदालत से लूँगी, जो बेशक बेहतर इंसाफ करने वाला है। मेरे नज़दीक इन पैसों की कोई अहमियत नहीं। मेरा असासा मेरे बाबा थे जो अब वापस नहीं मिल सकते। इसकी बात पर कैफ की आंखें नम हुई, जिसे इसने पलकें झपक कर छुपा ली। मुझे किसी के खिलाफ कोई केस नहीं करना। बरीरा अपनी बात कहकर वापस मुड़ने लगी, जब कैफ की आवाज़ पर रुक गए। किसी की यूँ चुप चुप कर बातें सुना अखलाकियात के खिलाफ है। कैफ ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं यहाँ बीबी जान के बारे में बात करने आई थी, पर तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बरीरा पैर पटकती वहाँ निकल गई। कैफ मुस्कुराते उसको जाता देखता रहा। वो ऐसा ही था, ज़्यादा हंसता बोलता नहीं था, लेकिन किसी का दिल जलाना हो तो फौरन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और बरीरा को तंग करने में से और भी मज़ा आता था। 2 मिनट के लिए तो बर्दाश्त होता नहीं है, पता नहीं पूरी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त होगा। बरीरा बड़बड़ाती किचन में आई, जहाँ बीजान खड़ी खाने की तैयारी कर रही थी। क्या हुआ? बीजान ने इसके गुस्से से लाल पीला होता चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं, बरीरा ने बात टालनी चाहिए। तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बीजान ने फिर पूछा। वो मैं बरीरा बोल ही रही थी कि जब ही असलम भागता हुआ किचन में आया। बरीरा, मैडम आपकी फ्रेंड आई है। मेरी फ्रेंड? बरीरा ने उलझ कर दोबारा पूछा। जी, अनाया नाम बताया अपना, असलम ने जवाब दिया। अनाया? बरीरा फ़ौरन उठकर बाहर भागी। सामने डाइनिंग रूम में ही से अनाया सोफ़े पे बैठी नज़र आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अनाया ने इसको आते देखकर फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम सलाम। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? बरीरा इसको देखकर शॉक्ड रह गई, फिर उसे पूछती वो भी आकर अनाया के बराबर वाले सोफ़े पे बैठ गई। बीजान से पता चला? लड़की, तुमने तो मुझे कुछ बताना भी नहीं था, अनाया ने उसे आँखें दिखाकर कहा। बस अब इतना जल्दी में हो के टाइम ही नहीं मिला, बरीरा खामोशी से बोली। ये तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है? मैंने आज बीजान को फ़ोन करा तो उन्होंने मुझे सब बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम लोग यहाँ कहाँ हो, लेकिन बीजान ने मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हारे फ़ोन के बारे में? बरीरा हैरान हुई थी, क्योंकि मैंने मना करा था तुम्हें कुछ ना बताया। मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगी। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ वहाँ, तुम मुझे बता नहीं सकती थी? अनाया ने खुफी से कहा।
کیونکہ میں تمہارے لیے اور مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی تم پر انگلی اٹھائے یا تمہاری زندگی خراب ہو۔ بریرہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ آمنہ کا ماضی اب صرف بریرہ کا ہی نہیں، عنایہ کی خوشیوں کے لیے رکاوٹ بن گیا تھا۔ عنایہ کا ایک طوائف کی دوست ہونا اس کا جرم تھا اور یہی وجہ اس کے رشتے میں رکاوٹ تھی۔ مگر عنایہ کی موم ایک اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی عنایہ اور بریرہ کی دوستی کو غلط نہیں سمجھا۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ جو ان کی بیٹی کا نصیب ہے اسے ملے گا ضرور۔ لوگوں کو کچھ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب کی قسمت کا قلم اس اوپر والے کے ہاتھ میں لکھا ہے۔ جو نصیبوں میں ملے گا وہ تقدیروں میں، بے شک وہ رب بہت مہربان ہے۔ لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، جب دیکھو فضول بولتی ہو۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ ہمارے کیف جیجو کیسے ہیں؟ وہ تو شکر ہے بی جان سے بات ہو گئی، ورنہ تم تو بڑی میسنی نکلی، کچھ بتایا بھی نہیں۔ عنایہ نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ فضول باتیں مت کرو۔ بریرہ نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ عنایہ کہکمہ لگا کر ہنس دی۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتے ریان کو ڈرائنگ روم سے کسی انجان نسوانی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ اپنا ارادہ ترک کرتا دانت نکالتے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ہیلو لیڈیز، اس نے چہکتی آواز میں کہا۔ بریرہ نے ناگواری سے اسے دیکھا جبکہ عنایہ چھپ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بریرہ نے سپاٹ چہرے سے پوچھا۔ میں نے سوچا مہمان آئے مل ہی لوں۔ ہائے میرا نام ریان ہے، کیف کا فرینڈ، اور آپ کی تعریف۔ ریان عنایہ کی طرف دیکھتے ہوا گویا ہوا۔ عنایہ اس کی نظر سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ مل لیے، اب جاؤ۔ بریرہ نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ صحیح، ہمارے ہی گھر میں رہ کر مجھے ذلیل کر رہے ہیں، واہ۔ ریحان نے تکی نظروں سے بریرہ کو دیکھ کر سوچا۔ تبھی بی جان ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کمرے میں آئے اور بریرہ کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ السلام علیکم بی جان، عنایہ نے سلام کیا۔ وعلیکم سلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ بی جان نے پیار سے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، عنایہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے مسکرانے پر ریان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عنایہ اس کی طرف چہرہ کیا اور غصے سے منہ چھڑا کر یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہے کیا؟ ریان نے گڑبڑ کرا کر نظروں کا رخ بدلا، پھر بی جان سے گویا بی جان پاکستان میں لوگوں کا اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کمپلینس نہیں پیتے؟ ریان نے بریرہ اور عنایہ کے چھوٹے قد پر چوٹ کی۔ دونوں نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ بی جان لوگوں کا قد لمبے کھمبے کی طرح نکل جائے تو اس میں ہماری غلطی ہے؟ بریرہ نے چبا چبا کر بولا۔ ریان بس دانت نکال کر رہ گیا۔ کیف اور ریان کا قد بریرہ سے کافی لمبا تھا۔ اب عنایہ کو دیکھ کر اس کی زبان بھی کھجلی ہوئی تو بولے بنا نہ رہ سکا۔ اے لڑکے، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، بی جان نے گھورا۔ نکل لے ریان، اس سے پہلے عزت کا فالودہ ہو جائے۔ اس کیف کے بچے نے صحیح کا ذلیل کرا رکھا ہے۔ وہ تو اپنی والی کے سامنے ہیرو بنا گھومتا اور میں اس کی والی کے ہاتھوں اپنی بیوی کے والی کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں۔ ہے میری والی؟ یہ سوچ کر ریان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تینوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے دماغی حالت پر شبہ ہو۔ میں چلتا ہوں۔ ان کے یوں دیکھنے پر ریان رہی سہی عزت بچاتا ہوا بولا۔ جاؤ بیٹا اور کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھا لینا، بی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بریرہ اور عنایہ نے مسکراہٹ دبائی۔ جی، ریان نے فوراً دانت نکال کر کہا۔ تبھی کیف بھی وہیں آ گیا اور کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر سیدھا بی جان سے گویا ہوا۔ بی جان ہم باہر جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ ارے نہیں بیٹا، تم لوگ جاؤ، بس جلدی آ جانا۔ جی، کیف اس بات میں سر ہلاتا ہوا ریان کی طرف مڑا۔ چلو کہاں؟ ریان نے سوال کیا۔ ابھی تو تمہیں بڑی جلدی لگی تھی واپس جانے کی، اسی کا انتظام کرنے جانا ہے، کیف نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں کچھ اور دن رکنا ہوگا، ریان دانت نکال کر کہتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ کیف بھی سر جھٹکتا اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ کون تھا؟ عنایہ نے کیف کی پشت کی طرف اشارہ کیا جو باہر جا رہا تھا۔ کیف؟ بریرہ نے سرسری سے جواب دیا۔ اوہ تو یہ ہیں، عنایہ نے شرارت سے کہا۔ بریرہ چھیپ گئی اور بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسے دونوں امریکہ کے گورے ہیں ہی لگتے ہیں، لیکن ان کی اردو کتنی صاف ہے۔ عنایہ کے کہنے پر بی جان اور بریرہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ عشاء کی نماز پڑھی تھی جب کیف کمرے میں آیا، نہ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ خاموشی سے کاؤنچ پہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز اٹھاتی کھڑی ہوئی اور جیسی پلٹی کیف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیف اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سر ہلاتی جائے نماز رکھ کر بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گئی، سوالیہ نظریں کیف پہ جمائی جو اب خاموشی سے سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے خاموشی کو کیف کی آواز نے توڑا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ بریرہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس دن کے لیے جب میں نے تمہیں کرسٹن کے ساتھ دیکھ کر باتیں سنائی تھی، میں غصے میں سب بول گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ویسی لڑکی نہیں ہو، لیکن عورتوں کے معاملے میں میری بے اعتباری نے مجھے سب کہنے پہ مجبور کر دیا۔ اس پارٹی میں میں نے کرسٹن اور اس کے دوستوں کی باتیں سنی تھی، اس نے تمہارے ہاتھ مجھے دکھانے کے لیے پکڑے تھے تاکہ میں تم سے بدگمان ہو جاؤں، اور کچھ وقت کے لیے وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ میں پارٹی میں بھی صرف تمہاری وجہ سے گیا تھا تاکہ معافی مانگ سکوں، پر مجھے معلوم ہوا کہ تم پاکستان جا چکی ہو۔ یہ سب
جاننے کے بعد میں گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ کیف بول کر خاموش ہو گیا، بریرہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پڑھنا بولی تو پھر گویا ہوا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، نظریں ابھی بھی تک جوتوں پر اٹکی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ پر بریرہ کی رکی۔ کیف نے اسے سب باتوں پہ پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا۔ پر تمہارے لیے عورتیں اتنی بے اعتبار کیوں ہیں؟ بریرہ کے سوال پہ کیف نے واپس نظر جھکا لی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھائی اور ایک بار پھر کیف کی آواز نے سے خاموشی کو توڑا۔ میں 12 سال کا تھا جب میرے ماں باپ کی طلاق ہوئی۔ میرے ڈیڈ مما سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی ہر خواہش کو کہتے پورا کر دیتے تھے، مگر کیف رکا، گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ مگر بابا نے ڈیڈ کو چھوڑ دیا، اپنے پاکستان سے آئے کزن غفار کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ وہ ڈیڈ سے زیادہ امیر انسان تھا۔ اس نے ماما کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ میں نے کبھی ماما اور ڈیڈ کو لڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس شخص کے آنے کے بعد ان کی لڑائیاں ہونے لگی۔ ماما بات بات پہ ڈیڈ سے ناراض ہو جاتی، پھر ان سے لڑتی کہ وہ کبھی ماما کو کچھ نہیں دے سکے۔ سب کچھ تو دیا ڈیڈ نے کیا ہوا ہے، جو وہ ان کو کزن سے زیادہ امیر نہ تھے، لیکن ماما کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے۔ کچھ عرصے سے ایسے چلتا رہا، لڑائیاں بڑھتی گئی اور ایک دن ماما نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیڈ نے انہیں سمجھانا چاہا پر وہ نہ مانی اور ڈیڈ سے طلاق لے کر غفار سے شادی کر لی۔ ڈیڈ نے ان کی خوشی کے لیے انہیں طلاق دے دی تھی، پر وہ ماما کے جانے کے بعد بس اپنے کا کام کے ہو گئے۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بی پی ہائی میں ڈیڈ کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پل بھر میں یتیم ہو گیا۔ پاکستان سے آئے رشتہ داروں نے مجھے اپنے ساتھ پاکستان لانا چاہا، پر میں نہ آیا۔ میں وہیں رہنا چاہتا تھا۔ تب عمر انکل اور مشل آنٹی نے مجھے سنبھالا۔ ماما نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا ایک ہی بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مجھے ان کے پیار کی ضرورت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے مکافات عمل پر یقین تھا۔ میں بڑا ہوتا گیا اور انہیں ڈھونڈ کر ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھے اور ڈیڈ کو غم دے کر وہ خود کیسے خوش رہتی ہیں، اور وہی ہوا۔ جس دولت اور پیسے کے لیے وہ مجھے اور ڈیڈ کو چھوڑ کر گئی، ان سب سے محروم ہو کر رہ گئیں۔ ماما کی دوسری اولاد نے باپ کے مرتے ہی انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ ان سے وہ چھت بھی چھین لی جس کے لیے وہ ہمارا گھر تباہ کر کے گئی تھی۔ کیف نے کہہ کر انگوٹھے سے آنکھ کا کونا صاف کیا۔ پریرہ آنسو بہاتی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا، ضروری نہیں کسی کے غلط راستے پر چلنے کی وجہ بری صحبت ہی ہو، لوگوں کے اندر کی ویرانیاں بھی انہیں اس جگہ لے آتی ہیں۔ کیف کے اندر کا بدلاؤ تو پہلے ہی اس گھر میں آ کر دیکھ چکی تھی، اسے خوشی بھی ہوئی۔ کیف کو یوں نماز قرآن پڑھتا دیکھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا تھا جس نے عورت کو اس کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ماں باپ کے جانے میں ہوئی غلط فیصلے اور بچوں کی زندگی کس طرح متاثر کر دیتے ہیں، اسے افسوس ہوا کیف کے لیے۔ تم سے پہلے میں عورت کا وجود بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم پہلی لڑکی جس پر میں نے اعتبار کیا، جب تم نے لقمان کے خلاف کیس سے منع کرا تھا، یہ کہہ کہ تمہارے نصیب پیسوں سے زیادہ تمہارے بابا کی اہمیت ہے، تو مجھے فخر محسوس ہوا کہ میں نے تمہیں چنا، اللہ نے تمہیں میرے لیے بنایا۔ میں کوشش کروں گا بریرہ کہ تمہیں ہر خوشی دوں، کسی چیز کی کمی نہ رہے، بدلے میں تم بس مجھ سے وفا کرنا۔ کیف کی بات پہ بریرہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ بہت مشکل لگ رہا تھا توائی جیسی شناخت اور ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے لیے عورت پہلے سے بے اعتبار ہو۔ کیف پاؤں سے اٹھا اور بریرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم فکر نہیں کرو بریرہ، وہ تمہاری ماں کا ماضی تھا، ہم اپنے حال میں رہ کے زندگی گزاریں گے۔ ماضی کا ذکر کبھی ہمارے حال میں نہیں آئے گا، لڑائی میں بھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ بریرہ نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ سکتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں کیف، بریرہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میں اپنے رب کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں، مر جاؤں گا پر وعدہ نہیں توڑوں گا۔ کیف نے مسکرا کر کہا۔ بریرہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ کیف پلٹ کر جانے لگا جب بریرہ نے پیچھے سے پکارا، کیف! اس نے مڑ کر سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ تمہاری ماں ہے کیف، جسے جیسی بھی ہے وہ پھر بھی ماں ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں ان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بہت محرومیاں آئی ہیں، لیکن ماں جیسی بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا۔ جو ان کی دوسری اولاد نے کیا وہ تم مت کرو، تم امریکہ جا کے ان کو اولڈ ایج ہوم سے گھر لے آنا۔ جو پیار تم ان سے پہلے حاصل نہ کر سکے اب کر لو، زندگی تمہیں ایک بار پھر موقع دے رہی ہے۔ ایک بار موقع ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کی قسمت، لیکن دوسری دفعہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیف، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی ہر ایک انسان کی برائی سے پاک ہو، اس دل میں کسی کے لیے کچھ برا نہ ہو، پھر وہ تو تمہاری ماں ہے، انہیں وہاں مت رہنے دو۔ کیف خاموشی سے کھڑا اس کو سنتا رہا، اس کے چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی آ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ افسردگی سے اسے زیادہ دیکھتی رہی، وہ اس کے دکھ کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ ایک ماں کے غلط فیصلے اور ایک ماں کی غلط خواہشوں نے دونوں کی زندگی میں خلا پیدا کر دیا تھا جس کو بڑھنے میں وقت لگنا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ کھڑا سامنے اپنی عمارت کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی سوچوں میں گم ساکت کھڑا تھا، جب کانوں میں پڑنے والی آواز پر اپنی سوچ سے باہر آیا۔ کیا سوچ رہے ہو کیف؟
बरीरा ने चेहरा मोड़कर इसकी तरफ देखा, जिसकी नज़र अभी भी सामने तामीर इमारत पे टिकी थी। बरीरा और कैफ को पाकिस्तान से अमेरिका एक माह हो गया था। रेयान और अनाया की मुलाकात के बाद रेयान ने अपने पेरेंट्स को पाकिस्तान ही बुला लेते और बीजान के ज़रिए अनाया के घर वालों से मिलकर रिश्ते की बात भी कर ली थी। रेयान की माँ को अनाया एक नज़र में ही पसंद आ गई थी और उनकी मशरकी बहू लाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी, और क्या चाहिए था। इधर अनाया की मॉम को भी क्या एतराज़ होना था, बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता घर आ गया था, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दी और लगे हाथों दोनों की मंगनी की रस्म अदा करके 1 साल बाद शादी की तारीख भी दे दी। इस सब में सबसे ज़्यादा खुश बरीरा और अनाया थी। बचपन में जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के वादे किए थे, वो अल्लाह ने पूरे करवा दिए थे। रेयान के ज़रिए अनाया भी अमेरिका आ रही थी। इसी दौरान बरीरा को लुकमान की मौत की खबर भी मिली थी। लुकमान रोड एक्सीडेंट में ट्रक के आगे आकर बुरी तरह कुचल गया था। जिस नाम और शोहरत पैसे के लिए वो लोगों को धोखा देता था, वो सब दुनिया में रह गया था। अगर कुछ साथ गया था तो वो थे उसके अच्छे बुरे अमाल। बरीरा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी चीज़ इसके बाबा को वापस नहीं ला सकती थी। बरीरा ने कैफ से बीजान को साथ ले जाने की बात भी कर ली थी। खुद कैफ का भी यही इरादा था। बीजान का बरीरा के सिवा कोई नहीं था। इनको अकेला छोड़ना कैफ को अच्छा नहीं लगा, इसलिए रेयान की मंगनी के बाद सब साथ अमेरिका आ गए। अमेरिका आते ही कैफ ने सबसे पहला काम अपने निकाह का किया। निकाह के दौरान उमर साहब और शर ने बरीरा के बाप भाई का हक अदा कर दिया। बरीरा को उमर साहब की फैमिली बहुत अच्छी लगी था। हम सब की मौजूदगी में वो एक पाकीज़ा और खूबसूरत रिश्ते में जुड़ गए। नरगिस को भी इसने निकाह में बुलाया था और नरगिस से ये मालूम हुआ कि रेयान ने पाकिस्तान में बिजनेस मीटिंग के बहाने बरीरा का एड्रेस लिया था कि बरीरा के पास जाकर इसके डैड की भी ताज़ियत कर लेंगे। और अब बरीरा को उनके साथ देखकर नरगिस ने रेयान की ठीक ठाक खबर ली थी कि उसके झूठ बोलने पर। बरीरा इन दोनों की नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा दी। दुनिया मुकम्मल सी लग रही थी, बस कमी थी तो अब्रिश कैफ की माँ की। वो चाहती थी कि उनके निकाह पर वो भी शामिल हो, लेकिन कैफ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर सुन भी लेता तो इग्नोर करता हुआ कमरे से निकल जाता। माँ बेटे के बीच खड़ी इतनी सालों की दीवार को गिराना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं, और आज बरीरा इसमें कामयाब भी हो गई थी। मुझे हिम्मत नहीं है बरी इनका सामना करने की, कैफ सामने देखते हुए बोला। बरीरा ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। माँ है वो कैफ, उसके पास जाने में कैसी हिचकिचाहट। बरीरा कैफ की तरफ देखते हुए गोया हुई, अगर वो मेरे साथ ना आई तो कैफ ने चेहरा मोड़कर बरीरा को देखा। वो आ जाएंगी कैफ अपने बेटे के पास वापस। बरीरा ने मुस्कुरा कर कहा। कैफ ने इस बात में सर हिलाया और बरीरा का हाथ थामे सामने बने ओल्ड एज होम के अंदर चला गया। ये ओल्ड एज होम के अंदर बना बड़ा सा सब लॉन था। यहाँ कई औरतें घास पे बैठी शाम की चाय लुफ्त उठा रही थी। वहीं कोने में लगी बेंच पे बैठी वो औरत आसमान पर उड़ते परिंदों को साकित नज़रों से देख रही थी। ऐन इसी वक्त किसी की आवाज़ इसके कानों से टकराई। मम्मा। अपरेश ने चेहरा उठाकर अपने दाएं जानिब देखा, जहाँ वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ खड़ा था। अपरेश खाली खाली नज़रों से इसको देख रही थी। कैफ चलता हुआ अपरेश के पास आया और उसके घुटनों पर हाथ रखकर घास पर ही बैठ गया। अब्रिश की नज़र उसके चेहरे पर थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मामा, मैं कैफ, आपका बेटा कैफ हैदर। कैफ ने अटकते हुए कहा। अब्रिश ये नाम सुनकर शॉक्ड रह गई। कितने सालों बाद वो ये नाम सुन रही थी। जिस बच्चे को वो छोड़कर गई थी, आज वो एक भरपूर मर्द की सूरत इसके सामने बैठा था। अब्रिश के होठों पर चंबी शोर और मध्यम सी आवाज़ इसके होठों से निकली, कैफ मेरा बच्चा। और ऐन इसी वक्त वो फूट फूट कर रो दी, अपना सर कैफ के हाथों पर रख दिया। मुझे मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे डैड के साथ बहुत ज़्यादती की। यही वजह है कि मैं आज तनहा रह गई। ये मकाफ़ात अमल है जो आज मैं यहाँ हूँ। मैं तुम दोनों को छोड़ आई थी, आज सब ने मुझे छोड़ दिया। हो सके तो इस बूढ़ी माँ को माफ़ कर देना कैफ। वो सर उठाकर रोते हुए कहने लगी थी कि अचानक कैफ के सामने हाथ जोड़ दिए। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? कैफ ने उनके हाथों को अलग किया। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ मम्मा, बल्कि मैं तो आपको घर ले जाने आया हूँ। आप चलेंगी ना? कैफ ने मुँह भरी नज़रों से अपरिश को देखते हुए कहा। अपरिश ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं इस लायक नहीं बेटा, मेरी यही सज़ा है कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इधर ही गुजार दूँ। वो रोते हुए बोली। डैड भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए और अब आप भी मुझे अकेला छोड़ देंगी। कैफ के कहने पर इनके रोने में और तेज़ी आ गई। वो रोते हुए कैफ के गले लग गईं। बरीरा दूर खड़ी इन दोनों को देख रही थी। आज माँ बेटे का दिन था, इसलिए वो उनके पास नहीं गई। इन दोनों को गले लगकर देखकर बरीरा ने चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा। नम आँखें अपने रब की शुक्र गुज़ारती। आज़माइशें ख़त्म हुई थी। सबको अपने सब्र का फल मिल गया था। कैफ अब्रिश से अलग हुआ और हाथ बढ़ाकर उनके आंसू साफ किए। अब अपनी बहू से भी मिलने। कैफ ने बरीरा की तरफ इशारा किया, जो खड़ी इन्हें ही देख रही थी। अब्रिश ने बरीरा की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर पास आने का इशारा किया। बरीरा चलती हुई उनके पास आई। अपनी बहू से मिले हैं ना, बिल्कुल बंदरिया जैसी। कैफ ने शरारत से कहा। बरीरा ने घूर कर इसे देखा। अब्रिश ने अपनी बेसाख्ता उमट आने वाली मुस्कुराहट दबाई। नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसने बरीरा का हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, अब्रिश ने कहते हुए दोनों को साथ लगा लिया। बरीरा ने अब्रिश के गले लगे कैफ
کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اشارہ تھا کہ گھر چلو پھر بتاتی ہوں کون بندہ ریا۔ کیف نے برش کی کمر کے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بریرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیف نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری اور بریرہ اسے گھورتی دھیرے سے مسکرا دی۔